Hello friends, in this particular video we are going to see certain advanced hot questions related to componendo and dividendo. Now the very first question which I have in front of me is root of 4x plus 1 plus root of x plus 3 upon root of 4x plus 1 minus root of x plus 3. यहाँ पे you have to notice that ये जो common है, the denominator, this whole thing is your denominator and this whole thing is your numerator. This is equal to 4 upon 1. Now in this case if we consider, अगर हम consider करते हैं a equal to the whole numerator, जो भी numerator में लिखा हुआ है इस पूरे part को हम a consider करते हैं, and the whole thing which is there in denominator, that thing we consider as b. Simplifying a plus b upon a minus b, how we can solve this? If we consider a plus b and a minus b, what happens? a प्लस बी लेने के लिए आपको ये पूरा न्यूमरेटर लेना है, देन यू हैव टू पुट अ प्लस साइन एंड देन यू हैव टू टेक दिस होल डिनोमिनेटर. सिमिलरली डिनोमिनेटर में a माइनस बी के लिए यू हैव टू टेक दिस होल थिंग एज न्यूमरेटर, देन माइनस साइन एंड देन दिस होल थिंग एज डिनोमिनेटर. व्हाट हैपन्स आफ्टर दिस? जब आप ये सॉल्व करते हैं देन दिस पर्टिकुलर थिंग 4x प्लस 1 एंड 4x प्लस 1 दिस विल बी एडेड, न्यूमरेटर में दोनों ऐड होंगे, प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस 3 एंड माइनस रूट ऑफ एक्स प्लस 3. ये प्लस में है ये माइनस में है, बोथ ऑफ देम विल कैंसिल ईच अदर. सिमिलरली इन द डिनोमिनेटर रूट ऑफ 4x प्लस 1 एंड माइनस रूट ऑफ 4x प्लस 1 विल कैंसिल ईच अदर. व्हाट रिमेन्स? डिनोमिनेटर में क्या रहेगा? रूट ऑफ एक्स प्लस 3 माइनस एंड माइनस, माइनस माइनस प्लस, रूट ऑफ एक्स प्लस 3 प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस 3 विल गिव यू 2 रूट एक्स प्लस 3. सो न्यूमरेटर में बचेगा 2 टाइम्स रूट ऑफ 4x प्लस 1 एंड डिनोमिनेटर में होगा 2 टाइम्स रूट ऑफ x प्लस 3. दैट आई हैव रिटन ओवर हियर. राइट साइड में क्या होगा? 4 प्लस 1 अपॉन 4 माइनस 1. वाई? बिकॉज हमारा a है 4 एंड b इज़ 1. सो 4 प्लस 1 4 माइनस 1. वी आर डूइंग कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो. द आंसर विल बी 4 प्लस 1 इज़ 5, 4 माइनस 1 इज़ 3. सो द आंसर विल बी 5 upon 3. Now proceeding further, what we have over here is when we are squaring both the sides, before squaring both the sides we have to cancel 2 and 2. 2 और 2 cancel हो जाएगा यहाँ पे. Then the remaining things will be 4x plus 1 x plus 3, दोनों स्क्वायर रूट में है. राइट साइड में we have 5 upon 3. जब आप इसका स्क्वायर करते हो स्क्वायर रूट will be gone and when you square this square root will be gone and 4x plus 1 upon x plus 3 will remain over here. स्क्वायर लेने से स्क्वायर रूट न्यूट्रलाइज हो जाता है. 4x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 विल रिमेन. राइट साइड में 5 अपॉन 3 का स्क्वायर यू विल बी टेकिंग, दैट विल बी 25 अपॉन 9. 5 5 is 25, 3 3 is 9. Then we are rearranging these terms. When we rearrange these terms, this 9 will go over here and multiply with 4x plus 1. This x plus 3 will be shifted over here, it will multiply with 25. 9 into 4x will give you 36x plus 9 ones are 9. And 25 into x plus 3 will give you 25x plus 25 3s are 75. So that term you can get over here. Simplify करने से ये term आ जाता है. After this, what we are doing, 25x will be shifted this side. 36x minus 25x आ जाएगा. And यहाँ पे right side में 75 will remain and 9 will be shifted this side. So this will become 75 minus 9. 36 minus 25 and 75 minus 9. 36 minus 25 will give you 11x. एंड 75 माइनस 9 विल गिव यू 66x. 11x का मतलब है 11 एंड x आर मल्टीप्लाइंग, तो x को एज इट इज़ रखना है, 11 को शिफ्ट करना है दूसरी तरफ, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, 11 विल गो ऑन द अदर साइड, इट विल डिवाइड, सो इट विल बी 66 अपॉन 11. 11 के टेबल में 11 1s are 11 6s are. द फाइनल आंसर विल बी x इक्वल टू 6. दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो यू कैन easily see I have solved this using componendo and dividendo. Similarly, I have got another question. In this particular question also we are going to take similar format. How to solve this? सबसे पहले क्वेश्चन देखना है ध्यान से. 3x minus 4 the whole cube minus x plus 1 the whole cube. 3x minus 4 the whole cube plus x plus 1 the whole cube equal to 61 upon 189. Now here I would advise, एक पर्सनल एडवाइस है, क्वेश्चन में आप क्लियरली देख सकते हैं दिस इज़ इन नेगेटिव, दिस इज़ इन पॉजिटिव. सो वी कैन ऑलवेज यूज़ इन्वर्टेंडो, जो मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है. वी कैन यूज़ इन्वर्टेंडो. दिस डिनोमिनेटर कैन बी शिफ्टेड इन न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर कैन बी शिफ्टेड इन डिनोमिनेटर. सो दिस होल थिंग कैन बी रिटन एज 3x minus 4 the whole cube plus x plus 1 the whole cube upon
3x माइनस 4 द होल क्यूब माइनस x प्लस 1 द होल क्यूब. ये LHS है. RHS में भी सेम चेंजेस आएंगे. 189 विल गो इन न्यूमरेटर, 61 विल कम इन डिनोमिनेटर. नाउ यूजिंग दैट, after that what I have done is again I have used componendo and dividendo. Now when I'm talking about componendo and dividendo, what happens, ये पूरा टर्म मेरा a है, ये पूरा टर्म b है. So what I'll be doing, a plus b, you can see ये दोनों टर्म सेम लिखना है, then we have to use plus sign, then I have to write this whole term. So this will be a plus b. Similarly denominator के लिए this whole term I have to write as it is. I have to use a minus and I have to write this whole term. I have written that. Now just like our previous question, इस question में भी we can clearly see in numerator 3x minus 4 the whole cube plus 3x minus 4 the whole cube will give you 2 times 3x minus 4 the whole cube. This plus and this term is in minus will get cancelled. Denominator में 3x minus 4 the whole cube minus 3x minus 4 the whole cube will get cancelled. What remains is x plus 1 the whole cube minus of minus. Minus minus will give you plus. So this will become x plus 1 the whole cube plus x plus 1 the whole cube, मतलब 2x plus 1 the whole cube. This will remain in denominator. Now ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा. दिस रिमेन्स 3x minus 4 the whole cube upon x plus 1 the whole cube. This is the thing for left hand side. For right hand side also I have made certain adjustment. Now this is the way how I solve maths. अगर आपको ये हेल्पफुल लगे तो आप ये कर सकते हो, अगर नहीं लगता है तो आप अपने मेथड्स फॉलो कर सकते हो. What I have done over here is 189 plus 61. Now जनरली 189 plus 61 आपका ऐड करने का अपना मेथड हो सकता है. मेरा मेथड क्या है, 189 plus 61 व्हेन आई एम एडिंग, आई कैन क्लियरली सी कि 189 में अगर मैं 11 ऐड कर देता हूँ तो ये 200 हो जाएगा. तो व्हाट आई विल डू इज़ दैट 61 में से 11 रिमूव करूँगा, इसमें ऐड कर दूंगा. दिस बिकम्स 200 एंड दिस बिकम्स 50. 189 plus 61 करोगे तो आंसर आएगा 250. उसी चीज़ को मैंने इस तरह से लिखा है 200 plus 50. सिमिलरली डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं इट्स 189 minus 61. व्हाट आई हैव डन ओवर हियर इज़ दैट यहाँ भी एडजस्टमेंट किया है. 189 को मैंने 200 बना दिया. आई हैव इंक्रीज इट बाय 11. तो अगर इसको 11 से इंक्रीज़ करेंगे तो इसको भी 11 से इंक्रीज़ करेंगे. दिस बिकम्स 200 minus 72. अगेन दिस आंसर विल बी 128. ये इतना एडजस्टमेंट मैंने क्यों किया है, सो दैट इट बिकम्स वेरी ईजी. राउंड फिगर के साथ ऐड करना और राउंड फिगर से सब्ट्रैक्ट करना बहुत ईजी है कंपेयर टू दिस. अगर आपको ये मेथड अच्छा लगे देन यू फॉलो इट, नहीं अच्छा लगे तो आप अपना खुद का मेथड यूज़ कर सकते हैं. वॉट नेक्स्ट इज़ 250 अपॉन 128. ना 250 अपॉन 128 को ईजिली हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 125 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 64. मैंने इसी तरह से क्यों लिखा है, बिकॉज आई कैन कैंसिल 2 and 2 कैंसिल हो जाएगा. और अगर आपका स्क्वायर और क्यूब आपको अच्छे से आता है देन यू कैन सी 125 इज़ 5 into 5 into 5 एंड 64 इज़ 4 into 4 into 4. मतलब ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है. वाई आई एम इंसिस्टिंग ऑन क्यूब, क्यूब के ऊपर मैं क्यों ध्यान दे रहा हूँ, बिकॉज इन क्वेश्चन वी हैव दिस क्यूब जो हमें कहीं ना कहीं यूज़ करना है. सो द फाइनल थिंग्स विल बी, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया. 3x minus 4 द होल क्यूब इज़ 125 एंड x plus 1 द होल क्यूब इज़ 64. लेकिन 125 को हम लिखते हैं 5 क्यूब और 4 क्यूब. अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं, इफ़ यू आर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, व्हाट विल बी योर आंसर, योर आंसर विल बी 3x minus 4. क्यूब रूट में ये क्यूब निकल जाएगा. 3x minus 4 अपॉन x plus 1 इक्वल टू 5 अपॉन 4. ये क्यूब्स निकल जाएंगे यहाँ पे. So this will remain 3x minus 4 upon x plus 1 equal to 5 upon 4. Now simplifying further क्या करेंगे, this 4 will take over here, will multiply with 3x minus 4 and x plus 1 will go over here, will multiply with 5. So this gives us 4 3s are 12x minus 4 4s are 16 equal to 5x plus 5. वो सब मैंने यहाँ पे लिखा है. Yes, I have written this thing over here which means 12x minus 16 equal to 5x plus 5. Rearrange करेंगे, 5x will come this side, 12x minus 5x 7x होगा और ये माइनस 16 यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट होगा. सो दिस माइनस 16 विल बिकम प्लस 16. 5 plus 16 21. सो 7x इक्वल टू 21. 7 मल्टीप्लाई x गिव्स अस 21. x निकालने के लिए 7 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है इसको हम शिफ्ट करेंगे यहाँ से यहाँ. सो x विल बिकम 21 अपॉन 7. 21 अपॉन 7 आप करोगे, आपका आंसर आएगा 3. सो x इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर गिवन क्वेश्चन. Now looking at the third part of the question, a is to b equal to 3 is to 1, b is to c equal to 5 is to 1. This is what is given to us. ये हमें दिया हुआ है. What we are supposed to find a cube upon 15b square c का cube. Now before I solve this question I have to make a relation. अगर a upon b 3 upon 1 है,
अगर मैं b को शिफ्ट करता हूँ यहाँ से यहाँ, तो कैन आई राइट a इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई b। सिमिलरली b अपॉन c, मतलब b न्यूमरेटर में, c डिनोमिनेटर में, इक्वल टू 5 अपॉन 1। c को अगर मैं यहाँ से यहाँ शिफ्ट करता हूँ तो कैन आई राइट b इक्वल टू 5c। यस आई कैन। ना अगर a 3b है और b 5c है, आई कैन डायरेक्टली कनेक्ट a एंड c। कैसे? a इक्वल टू 3b है, b की जगह पे आई एम रिप्लेसिंग b, आई एम रिमूविंग b, और b की जगह पे आई एम राइटिंग 5c। सो दिस बिकम्स a इक्वल टू 3 इंटू 5 इंटू c, मतलब 3 5 15, a इक्वल टू 15c। वाई आई हैव मेड दिस एडजस्टमेंट? बिकॉज इस क्वेश्चन में जहाँ पर भी a है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज दैट सारे टर्म्स को मैं एक ही टर्म में कन्वर्ट करता हूँ। a क्यूब की जगह पे आई विल बी राइटिंग 15c क्यूब, मतलब 15c मल्टीप्लाई 15c मल्टीप्लाई 15c। 15b स्क्वायर में 15 एज इट इज़ रहेगा, b स्क्वायर में b को रिप्लेस करूँगा मैं 5c से। सो b स्क्वायर की जगह पे आई विल बी राइटिंग 5c मल्टीप्लाई 5c एंड c विल रिमेन एज इट इज़। इससे बेनिफिट क्या होगा? द बेनिफिट यू कैन सी ओवर हियर। बेनिफिट ये होता है इससे कि सारे टर्म c में कन्वर्ट हो गए। आई हैव कन्वर्टेड एवरीथिंग इनटू c। नाउ व्हाट आई कैन डू इज दैट 15c यू कैन सी ओवर हियर, और एक 15 यहाँ पे और एक c यहाँ पे। सो दिस 15c एंड दिस 15 और ये c, 15 इंटू c 15c होता है। ये 15c, ये 15 और ये c कैंसिल हो गए। बचा हमारे पास 15c इंटू 15c अपॉन 5c इंटू 5c। 5c 5 वन ज़ा 5 थ्री ज़ा, 5 वन ज़ा 5 थ्री ज़ा, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। यहाँ बचेगा 3 मल्टीप्लाई 3, सारे कैंसिल हो जाएंगे। ओनली 3 मल्टीप्लाई 3 रिमेन्स इन द न्यूमरेटर। सो द आंसर विल बी 3 इंटू 3 का क्यूब, 3 3 ज़ा 9, 9 का क्यूब विल बी 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 9 ज़ा 81, 81 9 ज़ा 729। जिसको ये नहीं आता दे कैन डू 9 9 ज़ा 81, 81 10 ज़ा कर लो, 810 आएगा। 810 में से 81 माइनस करना बहुत ईजी है, दैट यू कैन डू। अगर 810 में से 81 माइनस करना नहीं आ रहा है तो 810 में से पहले 100 माइनस कर दो, 710 आएगा, उसमें 19 ऐड कर दो, इट विल बी 729। दिस इज़ वेरी इजी टू डू, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए बेसिक मैथ्स की। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, a स्क्वायर अपॉन 7bc सॉल्व करना है। a की जगह पे अगेन आई विल बी यूजिंग 15c, बिकॉज ये रिलेशन मैंने पहले यहाँ पे शो किया हुआ है। सो आई विल बी यूजिंग a की जगह पे 15c। दिस विल बिकम 15c मल्टीप्लाई बाय 15c, 7 एज इट इज़ होगा। b की जगह पे 5c आई एम यूजिंग और c एज इट इज़ है। सो हियर द बेनिफिट विल बी 5c और 15c, 1 ज़ा एंड 3 ज़ा। दिस विल बी 3 एंड दिस c एंड c विल बी कैंसल्ड। तो हमारे पास बचेगा 3 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 7। 3 इंटू 15 आंसर आता है 45, 45 अपॉन 7। इसको आगे आप सॉल्व नहीं कर सकते हो बिकॉज दे डोंट कैंसिल ईच अदर। So this is all in this particular video about different solutions which I have tried. मेरे एंड से मैंने अपना बेस्ट एफर्ट्स किया है सो दैट जो भी ये वीडियो देखता है उसको ये सॉल्यूशन समझ में आए। अगर आपको इससे कोई भी हेल्प लग रहा है प्लीज़ डू शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स। इफ़ यू फाइंड द सॉल्यूशंस ईजी काइंडली शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड प्रैक्टिस basics. More and more questions, kindly like, share and subscribe my channel which is here YouTube @Vishal Singh -QT9UQ. आपको YouTube पे ये सर्च करना है and you can easily find my channel. For any kind of doubts you can always text on my Instagram ID VS Very Simple Methods, and this is what my WhatsApp number is 9892318722. If you find the videos to be helpful, किसी तरह से आपकी कोई हेल्प होती है, आपका कॉन्सेप्ट ईजी होता है तो अपने फ्रेंड्स से शेयर करें। एंड आई एम वर्किंग वेरी हार्ड ऑन न्यू कॉन्सेप्ट्स एवरी डे सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मैं हेल्प कर सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट टू द चैनल।